السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو بدگمانیوں کے بارے میں ہے جو رشتوں کو داغدار کر دیتی ہیں۔ امتحان سر پر تھے، ہماری کوئی خاص تیاری نہیں تھی۔ تائی اور امی نے میرے بھائی احسن سے کہا کہ تم ان دونوں کو میٹرک کی تیاری کرا دو۔ یوں فرحانہ میرے تائی کی بیٹی روز شام کو ہمارے گھر آنے لگی۔ احسن بھائی نے ایک ٹائم ٹیبل بنایا اور سبق یاد کرنے کی کچھ آسان اور مفید باتیں بتا دی۔ انگریزی کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں حساب کے سوالات بھی سمجھاتے تھے۔ ہم دونوں تقریباً روزانہ شام کو 3 گھنٹے بھائی جان سے پڑھتی تھیں۔ اسی دوران بھائی جان کے دل میں فرحانہ کی معصومیت نے گھر کر لیا۔ انہی دنوں امی ان کے لیے لڑکی کی تلاش کر رہی تھیں، لہٰذا بھائی نے ضروری سمجھا کہ میرے ذریعے سے امی کو اپنے دلی جذبات سے آگاہ کر دیں۔ میں نے امی کو بتایا کہ احسن بھائی فرحانہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ ان کے لیے کہیں اور لڑکی نہ دیکھیں۔ دراصل ابو اور تایا کی بھی یہی خواہش تھی کہ فرحانہ کا رشتہ احسن سے ہی ہو، لیکن امی اور تائی اس بندھن سے گریزاں تھیں۔ جب بیٹے کی رضا اور مرضی سے میں نے ان کو آگاہ کیا تو وہ تھم گئے۔ ظاہر ہے فرحانہ میں کوئی کمی نہ تھی، تاہم یہ قدرتی بات ہے کہ جب جٹھانیاں دیورانیاں عرصے تک ایک ساتھ رہتی رہی ہوں تو کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل آپس میں رہتے ہی ہیں۔ یہاں بتاتی چلوں کہ شادی کے بعد بہت سال امی ابو تایا تائی ایک ساتھ ایک گھر میں رہائش پذیر رہے تھے۔ جب دادی کا انتقال ہو گیا اور ہم بچے بھی باشعور ہو گئے تو دونوں بھائی علیحدہ گھروں میں سکونت پذیر ہو گئے۔ ہم دونوں نے امتیازی نمبروں سے میٹرک کا امتحان پاس کیا تو تائی اور فرحانہ میرے بھائی کا شکریہ ادا کرنے ہمارے گھر آئیں۔ شام کا وقت تھا، میں فرحانہ کو لے کر چھت پر چلی گئی۔ باتوں باتوں میں نے اس سے پوچھا کہ اگر ہم تمہارا رشتہ احسن بھائی کے لیے مانگ لیں تو کیسا رہے گا؟ وہ مسکرائی اور شرما کر منہ چھپا لیا۔ میں تمہاری مرضی معلوم کرنا چاہتی ہوں، اس طرح شرما کر منہ نہ چھپاؤ، مجھے ہاں یا نہ میں جواب دو تاکہ میں امی کو تمہارے گھر جانے کا کہوں۔ وہ بولی، یہ تو تم نے میرے دل کی بات مجھ سے پوچھی ہے، مجھے بھی احسن اچھے لگتے ہیں۔ اس کا جواب سن کر میں خوش ہو گئی، جیسے میرے سر سے بوجھ اتر گیا ہو۔ اگلے دن وہ آئی تو میں نے ان دونوں کو بات کرنے کا موقع دیا اور چائے بنانے کا بہانہ کر کے ان کے درمیان سے اٹھ گئی۔ جب چائے بنا کر لائی تو دیکھا کہ وہ اکیلی بیٹھی تھی۔ میں محسوس کر رہی تھی کہ احسن بھائی اپنی اس تایا ذات میں دلچسپی لیتے ہیں، مگر وہ لڑکی تھی، بھائی بھی شرمیلے تھے، چاہنے کے باوجود اس سے بات نہیں کرتے تھے۔ بہرحال اس رشتے میں دونوں کی رضا تو شامل تھی ہی، لہٰذا میں نے امی کو راضی کر لیا اور تائی کے گھر بھیجا کہ وہ رشتے کی بات کریں۔ کچھ پس و پیش کے بعد تائی نے بھی حامی بھر لی اور بات چیت طے ہو گئی۔ پھر منگنی کا مرحلہ آیا۔ منگنی بھی دھوم دھام سے ہو گئی۔ منگنی کے فوراً بعد ہی تایا جی نے شادی کا مطالبہ کر دیا۔ احسن بھائی نئے برسر روزگار ہوئے تھے۔ امی چاہتی تھیں جس طرح منگنی دھوم دھام سے کی ہے شادی بھی دھوم دھام سے ہو، لہٰذا انہوں نے 2 سال کی مہلت مانگی تاکہ اچھی بری اور زیور بنا سکیں، مگر تایا جی دل کے مریض تھے، چاہتے تھے جلد اس فرض سے سبکدوش ہو جائے، لہٰذا انہوں نے 2 ٹوک کہہ دیا کہ یا تو لڑکی کو بیاہ کر لے جاؤ ورنہ میں بات ختم کر دیتا ہوں اور زیادہ دن انتظار نہیں کر سکتا۔ تایا جی کی اس بات سے ہم سبھی پریشان ہو گئے۔ فرحانہ اور احسن بھائی کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ ابو نے کہا ٹھیک ہے، ہم شربت کے گلاس پر نکاح پڑھوا کر لڑکی کو رخصت کر دیں گے۔ اس پر تائی بھی کر گئیں، کہنے لگیں کہ میری تو ایک ہی بیٹی ہے، شادی میں تو میں خوب دل کے ارمان نکالوں گی، آپ کو خوب اچھی بری لانی ہوگی اور زیور بھی 20 تولے سے کم نہ ہو، شادی بھی دھوم دھام سے ہوگی، اب اگر آپ کو منظور نہیں تو نہ صحیح۔ اور ابو کہتے تھے کہ میں تو ایک معمولی تنخواہ دار ملازم ہوں، تمام عمر بچوں کو روکھی سوکھی کھلائی ہے، میری آمدنی اگر حرام کی ہوتی تو اتنا جمع کیا ہوتا کہ میرے تمام دل درد دور نہ ہو گئے ہوتے۔ احسن بھائی کو ملازمت ملے جمعہ 8 دن ہوئے تھے، ان کے پاس بھی اتنی رقم نہ تھی کہ 2 تولے سونا خرید سکتے، کجا 20 تولے خرید کر زیور بنوانا تو اس دور میں جوئے شیر لانے کے برابر تھا۔ تائی کے مطالبوں سے ہم لوگ بہت مشکل میں پھنسے ہوئے تھے کہ انہی دنوں ابو کی بڑی بہن لاہور سے آ گئی۔ انہوں نے ہمارا مسئلہ سنا تو تایا کے گھر جا کر ان پر برس پڑی، کہا کہ تم لوگوں کو لحاظ نہیں ہے، ایک باپ دادا کی اولاد ہو کر کیسی غیروں جیسی شرطیں لگا رہے ہو، نہ تو فرحانہ ان کے لیے دوسری ہے اور نہ احسن تمہارے لیے غیر۔ غرض انہوں نے بھائی اور بھابھی کو خوب آڑے ہاتھوں لیا اور ان سے منوا کر دم لیا کہ وہ فرحانہ اور احسن کی شادی سادگی سے کر دیں۔ وہ خاندان میں سب سے بزرگ اور قابل احترام تھی۔ دادی کے بعد بھائیوں نے ان کو ماں کی جگہ احترام کا درجہ دیا تھا۔
तय पाया कि एहसन और फरहाना का निकाह सादगी से कर दिया जाए और साल बाद रुखसती अच्छे तरीके से की जाए ताकि कुछ पैसा बरी और जेवर के लिए पसंदाज हो सके। अबू अम्मी ने इस फैसले को कबूल कर लिया और ज़्यादा खर्चा किए बगैर बच्चों का निकाह सादगी से हो गया। ये एक बड़ी टेंशन थी जो अब दूर हो गई। वक्त गुजरने लगा। बेशक वक्त गुजरते देर नहीं लगती, लेकिन ये वक्त एहसन और फरहाना के लिए तो सदियों जैसा था। इसकी एक वजह यह भी थी कि हमारे यहाँ सदियों से रवाज है कि निकाह के बाद जब तक रुखसती ना हो जाए लड़की और लड़का एक दूसरे से पर्दा करते हैं। यहाँ भी यही मामला हुआ। फरहाना की एहसन भाई से मुलाकातें और बातें पाबंद हो गईं। बस उस रवाज ने इन दोनों का बेड़ा गर्क कर दिया। उन्हीं दिनों कनाडा से मेरी छोटी फूफो आ गई। वो अपने बेटे के साथ आई थी। फहद ने जब पहली बार फरहाना को देखा वो उस पर फरीफ्ता हो गया। वैसे भी ये लोग फहद के लिए लड़की देखने आए थे। लड़की तो घर में मिल गई, लेकिन उनको जब इल्म हुआ कि फरहाना का निकाह एहसन के साथ हो चुका है तो उनके अरमानों पर ओस पड़ गई। कहते हैं कि जिंदगी में हर इंसान को मोहब्बत जरूर होती है और मोहब्बत की खुशबूदार बेल हर इंसान को पलक झपकते ही अपनी लपेट में ले लेती है। ऐसे में कोई शख्स अपनी शातिराना चालों से दो इंसानों के दरमियान जुदाई का सबब बन जाता है। खबर नहीं फहद कैसा जनूनी इंसान था जिसने फरहाना को हासिल करने के लिए एहसन और फरहाना दोनों की खुशियों को बर्बाद कर दिया। फहद और उसकी माँ 4 माह के लिए पाकिस्तान आए थे, लेकिन इन 4 माह में उन्होंने हम गरीबों की बसाती उलट कर रख दी। फहद एक बाएतमाद, चर्ब जुबान और खूबसूरत नौजवान था। हंसना हंसाना उसको आता था। वो इंतहाई दिलचस्प और पुरकशिश शख्सियत का मालिक था। सारे घर वालों को लुभाता, खेल में उलझा लेता, घर में रौनक मेले का समा बांध देता। आनन फानन वो घर के हर फर्द में मकबूल हो गया। जब वो हमारे घर आता हम खिल उठते, सभी उसके साथ बातें करके खुश होते। जो रिश्ता उसका मुझसे था वही फरहाना से था। उसकी माँ हम दोनों की फूफी लगती थी, लिहाजा कभी वो ताया के घर होता और कभी हमारे घर। इस दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो मुंह पर तो दोस्त मगर पीठ पीछे छुरा घोंप देते हैं। फहद भी उन्हीं में से एक था। उसने फरहाना को हासिल करने के लिए रफ्ता रफ्ता जाल फैलाना शुरू किया। उसने ताया जी को ऐसी बातें कहीं जो हमने उनके बारे में कभी कही ही ना थी। साथ ही उनके पैर पकड़कर मिन्नत की कि प्लीज ताया जी आप चचा वालों को मेरी कही बातें नहीं बताइएगा, वरना वो हमसे नाराज हो जाएंगे और मेरा यहाँ रहना दोभर हो जाएगा। अलबत्ता जब वापस कनाडा चला जाऊं तो बेशक आप तस्दीक कर लेना कि उन्होंने आपके बारे में ये बातें की हैं। अब्बू को भी उसने इसी तरह की बातें करके परेशान किया। फिर इसी तरह मेरे अब्बू के पाँव पकड़कर भी मिन्नत की कि छोटे मामू प्लीज आप बड़े मामू से न कहना, वरना हमारे यहाँ आने की खुशी खाक में मिल जाएगी। मैं चला जाऊं तो बेशक बाद में बता दीजिएगा। हम लोग फहद के मुंह से ताया और ताई की कही ऐसी बातें सुनते कि दम साध लेते। यूं उसने हमसे मंसूब करके भी बहुत सी गलत बातें फरहाना के घर कहीं और उन लोगों के दिल हमसे बुरे कर दिए। ये सब बहुतान तराजी थी और इन बातों का हम लोगों से कोई ताल्लुक न था। मसलन अम्मी अब्बू के बारे में उसने ये कहा कि छोटे मामू और छोटी मामी कहते हैं कि हमने जल्दबाजी की, एहसन और फरहाना का निकाह कर दिया। अब हम ये रिश्ता करके पछता रहे हैं क्योंकि एहसन ने एक अमीर घराने की खूबसूरत लड़की पसंद कर ली है जो जहेज में कार, बंगला और बहुत कुछ लाएगी। वो एहसन भाई के साथ ऑफिस में काम करती है और उसका बाप बड़ी पोस्ट पर है। लड़की का नाम शीरी है। आपको यकीन ना आए तो बेशक एहसन भाई के दफ्तर जाकर तस्दीक कर लें। ये तो सच था कि शीरी एहसन भाई के दफ्तर में अच्छी पोस्ट पर थी, खूबसूरत थी, लेकिन एहसन का उस लड़की के साथ कोई ताल्लुक ना था और ना ही किसी भी किस्म का कोई चक्कर था। वो एहसन भाई के साथ काफी बार उनके दफ्तर जा चुका था। उसने वहाँ उस लड़की को देखा तो जहन में ऐसी कहानी बनाई कि जिसने फरहाना और उसके वालिदैन के दिल खराब कर दिए। यही नहीं, उसने दफ्तर में शीरी से बातचीत की, जान पहचान बनाई और जाने क्या बात कही कि वो फरहाना को फ़ोन करती और एहसन के बारे में वही कहती जो फहद उसको कहने की दरख्वास्त करता। ये हम समझ ना सके कि उसने शीरी के साथ किस किस्म की दोस्ती गांठ रखी थी कि उस लड़की को भी शीशे में उतार लिया था। फरहाना का तो एहसन से बात करना तक ममनू था। वो भला किस तरह इस मामले की छान फटक करती या एहसन भाई से बास परस करके गलतफहमी दूर करती। होते होते अंदर ही अंदर दोनों घरानों में बदगुमानियां और गलतफहमियां बहुत बढ़ गईं। दिलों में नफरत और दूरियां जड़ पकड़ती गईं।
दोनों घरानों के अफराद ऊपर से तो अखलाक से मिलते, लेकिन दिलों में रंजिश थी। एक दूसरे से मुंह पर कुछ नहीं कहते थे कि तुम लोगों ने हमारे बारे में अपने घर बैठे ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों की हैं। फहद तो वैसे ही दोनों घरों में हर दिल अजीज और चहीता भांजा था। किसी को जरा पर भी ये गुमान न गुजरा कि ये भांजा ही फितना फैला रहा है और उसका असल मकसद क्या है। अपने मकसद के बारे में तो उस चालाक ने किसी को हवा तक न लगने दी थी। फिर यहाँ तक नौबत पहुंची कि हमारा फरहाना के घर जाना बंद हो गया। यहाँ तक कि जब हम अपने रिश्ते की फूफी के घर दावत में गए, जहाँ फरहाना भी आई हुई थी, तो उसने मुझसे बात तक न की और मुझे देखते ही मुंह फेर लिया। भाई से तो वैसे ही पर्दा करती थी। फहद का असल मकसद तो फरहाना को अपने जाल में फंसाना था। वो अगर हमारे घर आती रहती या हम उनके घर जाते रहते तो फहद की बातों का पोल खुल जाना था। तभी उसने ये स्कीम सोची थी। यूं ऐसी सर्द जंग चल पड़ी कि दिल कोसों मील दूर हो गए, मगर फहद का पोल किसी ने भी ना खोला। कुछ गलती हमारी भी थी कि उसकी मकारी को ना समझ सके। यही समझते रहे कि अगर वो हमको ताया और ताई की कही बातें आकर बताता है तो खैरख्वाही कर रहा है और सच ही बता रहा है। आखिरकार वो अपने मकसद में कामयाब हो गया और उसने एहसन भाई के खिलाफ फरहाना के दिल में गलतफहमियां डालकर खुद अपनी मोहब्बत का झंडा गाड़ दिया। कुछ दिनों में ही फरहाना के वालिद ने मेरे अब्बू से फरहाना की तलाक का मुतालबा कर दिया। अम्मी अब्बू भी खार खाए बैठे थे। उन्होंने भाईजान को हुक्म दिया कि तलाकनामे पर दस्तखत कर दो। हम जाकर इन लालची लोगों के मुंह पर मार कर आते हैं, जिन्होंने 20 तोले सोने और शानदार बरी की खातिर हमको इस कदर जलील किया है। मेरा फर्मा बरदार भाई बेचारा घुटकर रह गया। पहली बार उसने हिम्मत से काम लेकर कहा, इस हुक्म से पहले मुझे एक बार फरहाना से बात करने दीजिए, मगर वालिदैन के नादिर शाही हुक्म के आगे उसकी एक न चली और उसने दिल रेजा रेजा से तलाकनामे पर दस्तखत करके अबू जान के हवाले किया। यूं मेरे बेकसूर भोले भाले भाई के हक पर उस शातिर ने कमाल चालाकी से डाका मारा और पाकिस्तान में रहने की मुद्दत बढ़वा कर ताया जान को घेर कर फरहाना से शादी कर ली। ताया के सामने बहन का बेटा जो फॉरेन नेशनल था मौजूद था। उनको लगा कि एहसन से ज्यादा अच्छा फहद का रिश्ता है। ये कैनेडियन नेशनल है, दौलत से माला माल है। तभी तो उन्होंने हमारी तरफ से दिल साफ करने की बजाय हंसकर फहद का रिश्ता कबूल कर लिया और गलत फहमियां दूर करने के बारे में कोई तरद्दुद ना किया। फहद और फरहाना की शादी के थोड़े दिनों बाद ही फहद का वीज़ा ख़त्म हो गया। अब उन लोगों का वापस जाना लाजिम था। तय ये हुआ कि फरहाना का पासपोर्ट बनवा कर फोटोकॉपी ले जाते हैं, कुछ अरसे के बाद बुलवा लेंगे। लेकिन वहाँ गए कई माह गुजर गए, वीज़ा ना आया। जैसे वो फरहाना को अपने पास बुलवाने वाली बात को भूल ही गए हों। इधर फरहाना शोहर के पास जाने के इंतज़ार में दिन गिन रही थी। एक दिन हमें किसी तकरीब में एक औरत और लड़की मिली। उन्होंने बताया कि कनाडा में हम आप लोगों के रिश्तेदारों के करीब रहते हैं। फहद ने वहाँ शादी कर रखी है, उसके तो बच्चे भी हैं। वालिद साहब ये सुनकर सकते में आ गए। वो उसी वक्त ताया जी के घर गए। फरहाना और फहद की शादी के काफ़ी अरसे बाद वो पहली बार अपने बड़े भाई के घर जाकर उनसे मिले थे। उन्होंने ये खबर सुनाई। फरहाना इस इत्तला को सुनते ही बेहोश हो गई। इस दौरान तमाम पिछली बातें की गईं और फहद की लगाई बातों की तस्दीक भी की गई तो तमाम बातें गलत साबित हुईं। अब्बू, अम्मी, ताया, ताई सब ने कस्में खाईं कि हमने तो ये बातें कभी कही ही नहीं थी। अब दोनों भाई अफसोस में थे कि हमने दिलों में कदूरत पालने की बजाय एक दूसरे को फहद से सुनी हुई बातें बताकर तस्दीक क्यों ना कर ली थी, जो इतना बड़ा सदमा झेलना पड़ा। ताया सख्त गुस्से और सदमे में थे। उन्होंने कनाडा फोन करके अपनी छोटी बहन से बात की और उनसे कसम देकर फहद की शादी के बारे में पूछा तो उन्होंने नाइल्मी का इजहार किया। ये भी बताया कि मुलाजमत के सबब वो दूसरे सूबे में रहता है और कभी कभार छुट्टियों में आता है। मैं उससे फ़ोन करके पूछूंगी। वो क्या पूछती, मुतअद्दिद बार पूछा गया, मगर वहाँ से कोई तसल्ली बख्श जवाब न मिला। अब दूसरे मुल्क का मामला था, सो लटक गया। 4 साल इसी तरह उनके इंतजार में गुजर गए। आखिर बड़ी फूफो कागजात लेकर कनाडा गई और छोटी फूफो पर जोर डाला कि बसाना है तो बसाओ, वरना तलाक दो। एक तो भाई के साथ धोखा किया, ऊपर से चुप साध ली है। क्या लड़की की जिंदगी यूं ही बर्बाद होती रहेगी? खबर तो सही थी, फहद ने वहाँ शादी की हुई थी और 2 बच्चे भी थे। बड़ी फूफो तलाक के कागजात पर दस्तखत करवा के ले आई। एहसन भाई का ऐसा दिल टूटा था कि शादी का नाम ना लेते थे। बहरहाल किस्मत में उनकी फरहाना ही लिखी गई थी, सो उन्होंने वालिदैन के समझाने से उसके साथ दोबारा निकाह किया। निकाह तो हो गया, मगर वो पहली सी बात न रही थी।
پھر بھی خاندانی شرافت کا ہاتھ انہوں نے پکڑے رکھا اور بیوی کے ساتھ پرسکون زندگی گزارنے کا عہد کیا۔ آج فرحانہ میری بھابھی ہے، ان کے 3 بچے ہیں، وہ بھائی کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے۔ تاہم جو داغ فہد نے لگایا تھا وہ تو باقی ہے۔ میرے بھائی کا یہ گھاؤ بہت گہرا ہے جو کبھی کبھی ہرا ہو جاتا ہے، اور اس گھاؤ کا مرہم احسن بھائی کے بچے ہیں جو اس کی جلن کو محسوس نہیں ہونے دیتے۔